Dear students, now we discuss about equation of plane passing through any point x1, y1, z1. उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जिस प्लेन पर एक पॉइंट x1, y1, z1 लाइज करता है, या इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच पासेस थ्रू a point x1, y1, z1. Now suppose or consider the equation of required plane be the general form of equation. हमने कंसीडर कर लिया कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना है उसका जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0 since point x1 y1 z1 lies on this plane. चूंकि x1 y1 z1 इस प्लेन पर स्थित एक बिंदु है, एक पॉइंट है, और इक्वेशन क्या होता है, लॉकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेशल कंडीशंस. तो लॉकस ऑफ पॉइंट्स इन point which returns the shape of plane. So since it is locus of point, it is locus of plane, so point satisfied this equation. चूंकि हमें जो इक्वेशन निकालना है, हमने उस इक्वेशन को माना कि ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, और हमें दिया गया है कि x1 y1 z1 इस माने इक्वेशन में इस प्लेन पर क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है. तो निश्चित ही x1 y1 z1 इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एज x1 y1 z1, वी गेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0. then we get equation second. Now subtract equation second from first. We get a is common in both x minus x1 plus b is common in both y minus y1 plus c is common in both z minus z1, and d minus d will be 0. It means there are no any constant term d, which equation which plane passes through a point x1 y1 z1. So equation of plane which passes through x1 y1 z1 will be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, where abc are the direction ratios of normal of plane. Again, if this plane passes through origin, it means value of x1 y1 z1 is equal to 0 0 0. Origin means 0 0 0. If this plane passes through origin, origin मूल बिंदु इस प्लेन पर लाइज करता है, या इस प्लेन का एक पॉइंट है, रिक्वायर्ड प्लेन का जब एक पॉइंट होगा तो x1 y1 z1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 0 0. तो इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू ओरिजिन, जो प्लेन ओरिजिन से होकर जाता है या ओरिजिन जिस पर लाइज करता है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0. ठीक. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म का सेंस है कि व्हेन यू हैव गिवन दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to given plane and direction cosines of normal is also given, then what will be equation of plane? If you have given that length of normal which is drawn from origin to given plane and direction cosines of normal is also provided, then what will be equation of plane? माने
उस समतल का, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, ज्ञात करो, जिसका मूल बिंदु से दिए गए समतल पर डाले गए परपेंडिकुलर या डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है, और जो लंब डाला गया है उस लंब की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, LMN है। ठीक है, तो कंसीडर ए प्लेन ABC, consider a plane ABC where ONB perpendicular, drawn from origin, where ONB perpendicular to the plane ABC. Consider a plane ABC and ONB perpendicular on given plane ABC drawn from the origin, where ON is equal to P and direction cosines of ON will be LMN. ये तो हमें दिया है कि we have given that ON is equal to P, length of perpendicular drawn from origin to given plane is equal to P. Now suppose take a point P on the plane ABC. Now we take a point P, XYZ lies on the plane ABC, join foot and point P, foot of perpendicular N to point P, then and join origin to P. Then NP will be perpendicular since NP lies on plane ABC, and ON is perpendicular to plane, so and NP lies on plane, so ON perpendicular to NP, so ON will be perpendicular to NP, and OP is, so ON is equal to, projection of OP on ON. सिंपल सा है, हमने कहा कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ABC एक प्लेन है, उस प्लेन पर ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर या नॉर्मल की लेंथ P है जो कि ON है, और ON जो नॉर्मल ड्रा किया गया है ओरिजिन से दिए गए प्लेन ABC पर, उसके डायरेक्शन कोसाइंस LM है। अब हमने कहा कि चलो एक हम वेरिएबल पॉइंट P, प्लेन ABC पर एक वेरिएबल पॉइंट P XYZ लेते हैं और P को N से ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो निश्चित है कि PN जो है वो किस पर होगा, N भी कहाँ पर है, प्लेन पर है, P भी कहाँ पर है, प्लेन पर है, तो N और P को मिलाने पर NP कहाँ लाइज करेगी, स्ट्रेट लाइन NP लाइज ऑन प्लेन, एंड ON इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, so ON will be perpendicular to NP. ON will be perpendicular to NP. Now OP projects, ON will be equal to projection of OP. तो OP का प्रोजेक्शन ON क्या होगा, OP का प्रोजेक्शन होगा, so ON will be equal to, ON is equal to projection of OP on ON. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मूल बिंदु से किसी पॉइंट P XYZ को मिलाने वाली, ओरिजिन से किसी पॉइंट P XYZ को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का किसी अन्य स्ट्रेट लाइन पर प्रोजेक्शन LX प्लस MY प्लस NZ होता है, जहां LMN उस स्ट्रेट लाइन के DCS होते हैं जिस पर प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो चूंकि OP का ON पर हम प्रोजेक्शन के लिए क्या लेते हैं कि O को दोनों एंड मिले हुए हैं और P एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा किया ON पर, तो NP परपेंडिकुलर है, देन ON विल बी प्रोजेक्शन ऑफ OP and ON will be projection of OP and projection of
any straight line which is formed to join origin to any point P x y z is always equal to Lx plus My plus Nz. So On equal to projection of OP on On. So On is equal to Lx plus My plus Nz, while length of On is equal to P. ये हमें दिया गया है. So substitute value of On P, then we get Lx plus My plus Nz is equal to P. Lm and are direction cosines of normal to the plane, while P is the length of perpendicular drawn from origin to given plane. ये हो गया आपका इक्वेशन. और जिसको Lx प्लस My प्लस Nz प्रोजेक्शन समझ आया वो पुराने 3D के लेक्चर में जाके प्रोजेक्शन में देख लेगा, क्योंकि मैंने इसको प्रूव किया है. इंटरसेप्ट फॉर्म कि यदि कोई प्लेन, जैसे स्ट्रेट लाइन, यदि कोई प्लेन एक्सेस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तीनों एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ऑन एक्सेस इज नोन एज इंटरसेप्ट्स. यदि एक्स एक्सेस को, मान लो कोई प्लेन है, कंसीडर ए प्लेन एबीसी, consider a plane ABC which cut off x axis at A, y axis at B, z axis at C. So OA, OB and OC will be intercepts on x axis, y axis and z axis respectively. Again, suppose any plane ABC cut off axis at point A, B and C, cut off any point, then distance of intersecting point from origin is known as intercept on that particular axis. कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्लेन एक्सेस को टर्म्स ABC पॉइंट पर कट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ओरिजिन से ए, ओरिजिन से बी, ओरिजिन से सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं उनको मिलाने वाले डिस्टेंस को एक्सेस पर क्या कहा जाता है? इंटरसेप्ट. इट मीन्स ओ ए, ओ बी और ओ सी अंतःखंड, हिंदी में कहा जाता है अंतःखंड. ओ ए, ओ बी, ओ सी इंटरसेप्ट होंगे. अब सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ए, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी A0 0, क्योंकि एक्स एक्सेस पर है. एक्स एक्सेस पर किसी भी कोऑर्डिनेट के y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, y पर एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे और z पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी A0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विल बी 0 b 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विल बी 0 0 c. इसी चीज को हमने यहाँ कहा कि लेट ABC बी गिवन प्लेन which cut off the axis at ABC where length of OA is equal to A, intercept on x axis is A, intercept on y axis is B, intercept on z axis is C. It means OA equal to A, OB equal to B, OC equal to C. Let the equation of required plane B. हमने मान लिया कि जो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो एक्सेस पर एबीसी का इंटरसेप्ट काट रहा है उसका इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. सिंस प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी 0 b 0 एंड पॉइंट सी 0 0 c, so it satisfies equation, required equation. So when we put in equation first a 0 0, then we get a small a capital A into a plus d. y और z 0 0 है तो दो टर्म 0 होगा, a plus d इक्वल टू 0. सो कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस d अपॉन e. Similarly when we substitute 0 b 0, then ax 0
एंड सी जेड जीरो, वी गेट बी वाई प्लस सी डी। बी वाई की जगह वाई की प्लेस पर रख दिया बी, तो बी बी प्लस डी इक्वल टू जीरो। सो कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन स्मॉल बी, intercept on y-axis. Similarly, when we put c 0 0 c, then ax and by will be 0. We get c capital C into small c plus d is equal to 0. Capital C into small c plus d is equal to 0. So value of capital C, arbitrary constant capital C, will be equal to minus d upon c. Now substitute value of a b c. Substitute value of ABC, we get minus d upon ax minus d upon by plus minus d upon cz plus d. Since d is common in all terms, now take out common minus d. Now take out common minus d. Take out common minus d, we get x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 is equal to 0. Since d cannot be equal to 0, so x upon a plus y upon b minus plus z upon c minus 1 is equal to 0, or x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. This is intercept form of plane. It is intercept form of plane. कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया किसका, प्लेन का। तो अंतःखंड रूप कि इफ यू हैव वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस, देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यदि आपको इंटरसेप्ट्स की लेंथ दी हो तो आप डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या करना है कि रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू ए प्लेन, रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन to a general equation of a plane to standard form, आप कह रहा है कि आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि सभी प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म में भी नोट किया जा सकता है, नॉर्मल फॉर्म को जनरल फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। माने एक इक्वेशन एक ही है, चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो। डिफरेंसेस क्या है कि हमारी जो सुविधा है, यदि हमें इंटरसेप्ट्स दिए हैं तो हम जनरल फॉर्म से निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यदि हमें एलएमएन दिया है नॉर्मल के डीसीएस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, तो हम नॉर्मल फॉर्म का क्यों, जनरल फॉर्म का क्यों यूज करेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वैल्यू क्या दी हुई है। अब यदि जनरल फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना हो, नॉर्मल फॉर्म में, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कर देते हैं इसको माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू डी, एंड नॉर्मल फॉर्म जो हो गया आपका, एंड नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी।
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमने डी को पॉजिटिव लिया है क्योंकि लेंथ हम इससे निकालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ पॉजिटिव होती है। सो हमने क्या रखा, डी को हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा। अब चूंकि दोनों एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं, दोनों ही प्लेन के इक्वेशन और दोनों सेम एक प्लेन को यदि फॉर्म कर रहे हूं तो इनके ये क्या होंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। सिंस 1 and 2 प्लेन 1 and 2 represent same plane, to represent same plane। सो यहां पर हम सेम प्लेन के लिए ही नोट कर रहे हैं, तो सो एल अपान माइनस ए, सो एल एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड विल बी proportional. It means L are proportional to minus A, M proportional to minus B, N proportional to minus C, and D proportional to, sorry, P proportional to D. Okay. Now we can write it is equal to under root L square plus M square plus ratio and proportion. By ratio and proportion we can write it under root L square plus M square plus N square upon under root minus A square means A square minus square of minus B will be B square and square of minus C will be C square, A square plus B square plus C square. Again, since L square plus M square plus N square is equal to 1, so we can write it L is equal to minus A upon under root A square B square plus C square, M is equal to minus B upon under root A square plus B square plus C square, and N is equal to minus C upon under root A square plus B square plus C square. Similarly, P is equal to length of perpendicular drawn from origin. It will be D upon under root A square plus B square plus C square. अब यदि हम ए बी माने एल एम एन की वैल्यू पुटअप कर दें, एल एम एन की इन वैल्यूज को रख दें, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड पी is equal to D upon under root A square plus B square plus C square. इसका मतलब है कि if equation 1 is divided by under root A square plus B square plus C square, then it is converted into normal form, and we can find out the value of L, M, N and P also. इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि यदि जनरल फॉर्म में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट, उनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर दें, किसको, जनरल इक्वेशन को, प्लेन के जनरल इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, तो जनरल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहां एल की वैल्यू माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है, एम की वैल्यू माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन की वैल्यू अंडर रूट माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पी की वैल्यू
डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में किसी भी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ ये नोट कर लेना तुम कि किसी भी जनरल प्लेन के जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, नॉर्मल फॉर्म में। और अब सेकंड है रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म और सरल है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या करते हैं हम, अपने पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू डी। इक्वेशन नंबर 1 को ले लें और डी से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपान डी एक्स माइनस बी अपान डी वाई माइनस सी अपान डी जेड इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 है, माइनस साइन है ही नहीं। और इंटरसेप्ट जो है वो किस में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में नोट कर देते, कन्वर्ट कर देते, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स अपान माइनस डी अपान ए प्लस वाई अपान माइनस डी अपान पी प्लस जेड अपान माइनस डी अपान सी इज इक्वल टू 1। सो स्मॉल a इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस विल बी माइनस डी अपान ए, intercepts on y-axis will be minus d upon b. Intercepts on z-axis will be minus d upon c. तो इसका मतलब हुआ स्मॉल a की वैल्यू हो गई a इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए, b इज इक्वल टू माइनस डी अपान b एंड c इज इक्वल टू माइनस डी अपान c। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेप्ट अंतःखंड स्वरूप में। ठीक, प्लेन्स पैरेलल टू एक्सेस, यदि कोई प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन एक्स एक्सेस के पैरेलल हो, प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यदि प्लेन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, यदि कोई प्लेन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, एक्स वाई एंड जेड, if any plane is parallel to x axis, then normal of this plane will be perpendicular on x axis, and when it will be perpendicular, then angle between normal and x axis will be 90 and cos 90 is equal to 0. So L is equal to cos 90 is equal to 0 and both other will be m and n. So equation of plane from the normal form, Lx plus my plus nz is equal to p. Substitute value of L is 0, then we get my plus nz is equal to p, or we can write it my plus nz minus p is equal to 0. यदि कोई प्लेन x एक्सेस के पैरेलल है, if any plane is parallel to x axis, then it cuts x axis at infinity. यदि कोई प्लेन x एक्सेस के पैरेलल है
तो वो एक्स एक्सेस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा, कहाँ पर अंतःखंड काटेगा, इनफाइनाइट पे। अब भी हमने पढ़ा था इन जनरल का इंटरसेप्ट फॉर्म माइनस डी अपान ए प्लस वाई अपान माइनस डी अपान बी प्लस जेड अपान माइनस डी अपान सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सो माइनस डी माइनस ए डी वाई अपान ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डी अपान ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन डी अपान ए इज इन्फिनिटी सो ए अपान डी इज इक्वल टू 0, ए अपान डी इक्वल टू 0। तो इफ plane is parallel to x axis, if required plane is parallel to x axis, then DRS of normal, DRS of x माने x axis की जो DRS है वो क्या 0 के प्रोपोर्शनल होंगे। तो a इक्वल टू 0, देन जनरल इक्वेशन, फ्रॉम जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0, चूंकि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू 0, देन वी गेट बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। हम यदि एक्स एक्सेस के समांतर या पैरेलल किसी प्लेन का इक्वेशन सपोज करते हैं तो जिस एक्सेस के पैरेलल होगा उसकी टर्म गायब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यदि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लेते हैं तो हम देखते हैं कि उस एक्सेस पे को वो इनफाइनाइट पे काटेगा, और इनफाइनाइट पे काटेगा तो डी अपान ए इन्फिनिटी होगा, इसलिए ए अपान डी 0, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यदि हम नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं तब भी हम देख रहे हैं कि यदि एक्स एक्सेस के पैरेलल प्लेन, तो उस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, जो अभिलंब होगा, वो एक्स एक्सेस पर भी नॉर्मल होगा, दोनों समांतर है, तो दोनों के बीच पे जो नॉर्मल है तो इस पर भी नॉर्मल होगा। इसका मतलब है एल इक्वल टू कॉस 90 होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो या तो ये होगा या ये। इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सेस, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सेस विल बी, अब ये वाई एक्सेस के पैरेलल है तो किसका टर्म गायब हो जाएगा, वाई का, एल एक्स प्लस एन जेड प्लस माइनस पी इक्वल टू 0, आर बी वाई सॉरी ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड इफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सेस, parallel to z axis, so z terms will be 0, lx plus my minus p equal to 0, r ax plus by plus d is equal to 0। तो जब भी हमें दिया गया हो कि रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो हम सपोज करेंगे कि सपोज आवर रिक्वायर्ड प्लेन बी, अब बोलने की जरूरत नहीं, वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो ये पहले एक्सरसाइज की थ्योरी हो गई, किसकी, प्लेन की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।